بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بات کر رہے ہیں ایرانی صدر کے اسیسینیشن کی، جسے کہ ایک حادثے کا نام دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم رئیسی صاحب، اللہ ان کا درجات بلند کرے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کم ہی لوگ کرتے ہیں، ان کے جیسے بہادر لوگ ہر روز نہیں پیدا ہوتے۔ اس وقت انہوں نے اپنا جہاد کا علم بلند کیا جب چاروں طرف کے مسلمان یہودیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف اٹھنا تو دور کی بات، ان کے خلاف بول بھی نہیں سکتے، ان کے خلاف لکھ بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف تو غزہ اور اسرائیل کے تنازع میں قتل عام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف عرب ممالک مل کے اس بات کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے گئے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ فلسطین ایک ریاست ہے۔ بھائی اس ریاست کا کیا کرنا ہے جس کے باسی نہ زندہ رہیں، جس ریاست کے باسیوں کو ختم کر دیا جائے۔ جب باسی نہیں ہوں گے تو پھر اس ریاست کا کیا کرنا ہے؟ ایسی ریاست کو تسلیم کروانے سے آپ کو کیا ملے گا جہاں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی نہیں ہے، جہاں وہ رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے؟ جیسے کہ ایک گھر ہو اور عدالت میں کیس اس بات پہ چل رہا ہو کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ فلاں بندہ ہے، اس بات پہ نہیں چل رہا کہ اس بندے کو زندہ بھی رہنے دیا جائے، اس بندے کو مار دیا جائے، مگر اس کی ملکیت پہ شور مچ رہا ہو کہ اس بندے کے جو گھر ہے وہ مجھے مانا جائے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ وہ بھائی اس کی ملکیت آپ کیا کریں گے جب جس بندے کی ملکیت آپ تسلیم کروانے میں لگے ہوئے ہیں اس بندے کو مار دیا گیا، اس گھر میں کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عرب دنیا بڑی بہادری سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں یہ قرارداد پاس کروا لیا کہ فلسطین ایک ریاست ہے، حالانکہ یہ سیدھا کا ڈرامہ ہے، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے۔ چلے بات اسی پہ رکھتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی صاحب کا جو اسیسینیشن ہے اس کے پیچھے بہت سے معاملات ہیں۔ یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کو جانا پڑے گا تب جب ایران فلسطین کے معاملے کے بعد ایران ان کی خفیہ سپورٹ کر رہا تھا، اور اسرائیل نے دمشق میں ان کے 2 جرنیل اور ان کے کچھ عملے، سفارت خانے کے عملے کے اوپر ڈرون اٹیک کر کے ان کو قتل کیا تھا، ان پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد ایران نے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 200-250 کے قریب میزائل داغے، جس سے ان کا جو اسرائیل کا سسٹم ہے، جو ڈیفنس سسٹم ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ اینٹی میزائل سسٹم تھا، جو میزائل کو اندر نہیں آنے دیتا تھا، وہ ناکام ہوا، جس میں سے 10 سے 12 میزائل 200-250 میں سے کراس کر کے جو ٹارگٹ کو بھی ہٹ کیا، جس سے ان کا بڑا نقصان تو نہیں ہوا، مگر ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کا چٹک کھل گیا کہ یہ اتنا قابل بھروسہ نہیں ہے۔ اور اس کے بدلے میں انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، مگر انہوں نے بدلے کا جو رد عمل دیا وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ایران نے کیا۔ انہوں نے بس دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کر دیا کہ ہاں بھی انہوں نے کیا، انہوں نے بھی چند میزائل ڈرون داغ دیے اور کہا کہ ہاں جی ہم نے بدلہ لے لیا، مگر حقیقتاً وہ پلان کر رہے تھے کچھ بڑا۔ انہوں نے سوچ رکھا ہوا تھا ایرانیوں کو ماریں گے جن کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جہاں کی زمین ان کے لیے ان کے بڑوں پرکھوں کی نہیں ہے، جہاں کیونکہ ایران کی سلطنت تو یہود سے بھی پہلے کیا نا، تو انہوں نے سوچ رکھا کہ ہمیں ان سے پنگا لینے کی ضرورت ہے، کیا ہے کہ نئی جنگ چھیڑنے کی، جس معاملے میں لگے ہیں اسی کی طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم اس معاملے کو چھوڑ کے فلسطین والے کو ایران کی طرف متوجہ ہوں۔ تو انہوں نے، ظاہر بات ہے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے اس خطے میں کام کر رہی ہیں، اور دوسرے بھی ممالک مغرب کے ان کے حمایتی ہیں اسرائیل کے، کیونکہ بینکوں کا نظام، بزنس سارا ان کے کنٹرول میں، وہ نہ تو کر نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پلان کرنے کا کہا ہوگا کہ پہلے ہی ہم یوکرین وار اور میں رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، دوسری طرف تم لوگوں نے فلسطین میں ہمیں ننگا کیا، ساری دنیا ہم پہ تھو کر رہی ہے، اور ICJ میں تمہارے خلاف کیس بھی چل رہا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر تم ایران پہ حملہ کرو گے، ایک تو تیسرا محاذ کھل جائے گا جس پہ ہمیں انگیج رہنا پڑے گا، اور دوسری طرف رشیا ہمارا پیچھا کر رہا ہے، تیسری طرف ایران غزہ والا معاملہ ہے۔ تو بجائے اس کے نیا محاذ کھولا جائے، نئی جنگ شروع کی جائے، بہترین یہ کرتے ہیں کہ پلان کرتے ہیں اس بندے کے خلاف جو ان کا امپورٹنٹ بندہ ہے۔ وہ ریگنگ کر رہے تھے، اور ریگنگ کرنے میں ان کی مدد کرنے والے ایرانی انٹیلیجنس کے ہوں گے لوگ، جو کہ یہودیوں کا ایک پختہ سسٹم ہے، وہ کسی بھی فوج کے لوگوں کو خریدتے ہیں، کسی بھی ملک میں جو فوجی ہوتے ہیں نا ان کو خریدتے ہیں، اور انہی سے وہ کام لیتے ہیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا، ان کو دنیا کا مال دولت شراب شباب سارا کچھ دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے ظاہر بات ہے ریگنگ کروائی ہوگی، اور پھر انہوں نے جب پکی پختہ اطلاع ملی اس کے بعد انہوں نے اپنا حملہ کیا۔ اور سب سے بڑی میں اس میں کہوں گا، جو سب سے بڑا جو اس میں جو اپوز ہوئے ہیں نا، جو سب سے برے طریقے سے وہ ہوئے ایکسپوز ہوئے ہیں سب سے زیادہ، وہ ہوئی ہے ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز۔ ان کا اتنی بڑی شخصیت کو ایک چھوٹے سے معاملے کے افتتاح کے لیے، ایک چھوٹی سی ڈیم کے افتتاح کے لیے
दूसरे मुल्क भेज देना और उस वक्त भेजना जब उनकी अच्छी खासी जो है ना चपचलें चल रही हैं, चपकलश हो रही है, उनकी मामला उनकी जंग की हद तक पहुंचे हुए हैं और उनका दुश्मन पता भी है शातिरा मुनाफिक है, वो किस तरह हमले करता है। और इसका सबूत उनके पास था कि रिसेंटली उनके 2 जनरल्स को उन्होंने दिमश्क में बाकायदा सफारत खाने पर हमला करके मार दिया। और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इतनी अहम शख्सियत को एक हेलीकॉप्टर में सफर करने के लिए, वो भी मुल्क से बाहर, सिर्फ एक डैम के इफ्तिताह के लिए, जो कि एक इतना इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा काम नहीं था कि 2 मुल्कों के दरमियान डैम, चलो अच्छी बात है, उसकी जगह कोई आम बंदा भी जा सकता था, वजीर दाखिला भी जा सकता था, कोई और भी बंदा जा सकता था अगर प्रेजेंटेशन जरूरी थी, प्रेजेंट होना जरूरी था ईरान की तरफ से। मगर अगर जाना जरूरी भी था तो फिर इस तरह इनको चाहिए था कि ये उनके रूट्स को इस तरह प्लान करते, आने और जाने के खुफिया रखते और दूसरा 2 रूट करते, क्योंकि ये बॉर्डर पे क्रॉस कर रहे थे ना, तो इनको चाहिए था कि जमीनी रास्ता इस्तेमाल होता है, फदाई रास्ता इस्तेमाल होता था कि दुश्मन के लिए अबाहम पैदा हो जाता है, उनको पता ही ना होता कि जो हमारा है, जिसको उन्होंने अटैक करना है, जिसको उन्होंने निशाना बनाना, वो बंदा फजाई सफर कर रहा है या जमीनी सफर कर रहा है। अब 3 हेलीकॉप्टर्स में से एग्जैक्ट उसी हेलीकॉप्टर का क्रैश कर देना जिसमें प्रेसिडेंट और उसका जो मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये कोई आम बात नहीं है। ये ना तो कोई क्रैश है और ना ही कोई सादी सी सीधी सीधी बात है, ये प्रॉपरली टारगेटेड असैसिनेशन है। टारगेटेड असैसिनेशन में इस क्यों की जाती है, इससे तो एक जंगी दुनिया में आपकी बदनामी नहीं होती। जैसे रिसेंटली आपको इंडिया ने बताया, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इंडिया ने पाकिस्तान में 20 लोगों को कत्ल करवाया। तो जिस तरह ईरान के जब फौजियों को कत्ल किया तो वो भी उन्होंने टारगेट असैसिनेशन की दिमश्क में, इसराइल ने ड्रोन मार के, जिस तरह पाकिस्तान में अमेरिका अफगानिस्तान से ड्रोन चलाता था, ये टारगेटेड असैसिनेशन होती है। ये तो ओपन नहीं हो रहा था सारा कुछ, मगर इसमें ये चाहते थे कि टारगेट असैसिनेशन भी हो मगर दुनिया की नजरों में भी बनाए। उन्होंने वक्त, टाइम, लोकेशन बड़ी चूज की, बड़ी अच्छी तरह। धुंध का इलाका, पहाड़ी इलाका, शाम का वक्त, ना कोई ड्रोन, ना कोई कैमरा, ना कोई सैटेलाइट फुटेज, कोई भी नहीं आ सकता। ऐसी जगह पे टारगेट किया। और अब धुंधला इलाका देखिए आप, हेलीकॉप्टर भी 3 है। अगर क्रैश एक हो सकता तो दूसरे 2 भी तो हो सकते थे ना। अगर दूसरे 2 बच गए, सिर्फ यही क्यों नहीं हुआ? इसके या तो हेलीकॉप्टर में कोई लगाया गया था सिस्टम, क्योंकि वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर था जिसको कंट्रोल किया गया, उसको खत्म किया गया रैगिंग के, प्रॉपर रैगिंग के बाद, या उन्होंने फिर उसको ड्रोन अटैक किया, ऐसा किया कि वो पता ही नहीं चले। किसी भी तरह इसमें ज़ाहिर बात है मदद तो अंदर से मिली है, गद्दारी की गई है ऐसे बड़े बंदे को मारने के लिए, क्योंकि 2-3 हेलीकॉप्टर जब उड़ रहे थे, तीनों में से कोई दूसरा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं हादसे का शिकार हुआ? एग्जैक्ट वही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार क्यों है जिसमें दोनों बंदे बैठे हुए थे? ये भी हो सकता है कि किसी न हद तक उन दोनों को एक जगह पर इकट्ठा करवाने में भी उनकी प्लानिंग हो कि इन दोनों को एक हेलीकॉप्टर में बिठाना है, क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों खत्म हो। मगर प्रेसिडेंट उनका पहला निशाना था। मगर हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना मुसलमानों का, गद्दारियां हैं। हमें बाहर से कोई नहीं मार सकता, हमारे अंदर से जो गद्दार होते हैं ना, ये हमारा बेड़ा गर्क करवा देते हैं, ये हमें मरवा देते हैं, असैसिनेशन करवा देते हैं। वो देखें, आपको ये समझने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा। शाह फैसल का कत्ल हादसा, भुट्टो को किस तरह घेरे में ला के मारा गया, वो भी एक प्रॉपर झूठे कत्ल का मुकदमा करवा के उसको खत्म करवाया गया। जनरल जिया का जहाज में बम लगवाया गया। कज़ाफी को उनके मुल्क के हालात खराब करके किस तरह खाना जंगी के बाद उसको मारा गया। सदाम हुसैन को किस तरह मारा गया, ये सारा यहूदियों का प्रोपेगेंडा था। और अरब को तो वो ऑलरेडी जो है ना डिसमेंटल कर चुके हुए थे, वो रजिस्टर करने के काबिल नहीं है। वो उनके खिलाफ बोलना तो दूर की बात, उनके खिलाफ उठना तो दूर की बात, उनके खिलाफ लिख भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते इस कदर, क्योंकि उन्होंने इनकम्पिटेंट लोगों को नीचे से बैक बेंचर को उठा के ऊपर बैठा दिया। जैसे उसकी मिसाल मोहम्मद बिन सलमान है, जिसका चाचा अभी जिंदा, जो कि किंग उसने बनना था, प्रिंस वो होना चाहिए था, उसकी जगह पे इसको लाया गया। सारी बात है किसकी सपोर्ट से, ये एक अलग टॉपिक है, इसके बाद में बात की जाएगी। मगर असैसिनेशन ये हुई है, दुनिया के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, जो तहकीकात करते हैं, जो इस तरह के मामलात में बोलते हैं, वो अक्सरियत का ये कहना है कि इस असैसिनेशन में इसराइल का हाथ है। अब इसराइल एक तो मानेगा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात उनका जो प्लान था वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गया, जो वो चाहते थे वो हो गया, दूसरा किसी को पता नहीं चला, तो उनको क्या ज़रूरत है वो अपने गले में आके ना
आप बैल मुझे मार वाली बात करें, ओपनली कहें कि हमने उसको मारा है। उनका मकसद पूरा हो गया, जो डैमेज उन्होंने करना था वो बहुत बड़ा कर दिया। अब ईरान में इस तरह की सिचुएशन इतनी जल्दी नहीं पैदा हो सकती कि जब तक नए इलेक्शन होंगे, नया बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, जब तक वो अपना कंट्रोल संभालेगा, जब तक वो चीज़ों को समझेगा, ये चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, तब तक जो है ना गजा वाला मामला ख़त्म हो चुका होगा। इसीलिए ये बात दुख वाली बात है कि इतने बड़े बंदे की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी खामियां इन्होंने की। ईरानियों की खामियों की वजह से ये बंदा गया। मुझे उससे कोई लगाव नहीं है, मगर उस बंदे ने जो दलेरी दिखाई है, जो हमला किया, वो पूरे अरब मुल्कों ने मिलकर नहीं किया, उसके लिए बंदे ने किया। और हमारे यहाँ जो माशाल्लाह हमारी जो फौज है 7.5-8 लाख के करीब, मिलियन के ऊपर हमारे पास आर्मी है, और हमारे एटॉमिक पावर भी है, हमारे पास मिसाइल भी 3500 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर की रेंज वाले हैं। मगर हमने गजा के मामले में इस कदर खामोशी इख्तियार की है कि हम जो है ना सरेंडर किए हुए हैं अपने आप को, हैंड्स अप है हमारे लिए, जो करना करो, हमें कोई परवाह नहीं। ये दुख वाली बात है। अब ये मामला जब तहकीकात होंगी, ये तहकीकात इतनी सिंपल नहीं होंगी, क्योंकि जिस जगह पर उन्होंने टारगेट किया वो जगह बड़ी प्लान्ड थी, बड़ी प्रॉपरली। हो सकता है कि इस रूट को चूज करने में भी उन्होंने प्रॉपर जो है ना प्लान किया हो, अपने गद्दारों को इस चीज के लिए तैयार किया हो कि उनको प्रॉपर इस रूट पे लेके आना, इस वक्त के करीब लेके आना। ये सारा कुछ प्लान होता है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो जिसे हादसे का नाम दिया जा रहा है, ये कत्ल है। ईरानी सदर के कत्ल में सीधा सीधा इसराइल, अमेरिका और हो सकता है सऊदी अरब में भी मदद की हो, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि सऊदी अरब भी ईरानी मुदाखले से बड़ा तंग है, खुसूसी तौर पर यमन में। यमन सऊदी अरब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यमन में हालात पिछले 10 सालों से तकरीबन 8-10 साल से खराब है, जंग इनकी चल रही है, और सऊदी अरब इससे बड़ा परेशान। उनकी आर्मी उधर एंगेज है, खर्चा उनका बहुत ज्यादा हो रहा है, उनके फौजी मर भी रहे हैं। इस बात का उन्हें दुख तो है, और ज़ाहिर बात है ईरान से किसी न किसी सूरत में वो बदला भी लेना चाहते थे। तो हो सकता है उन्होंने दूसरों के कंधों पे उन्होंने कहा चलो जब ये कर रहे हैं तो हम भी इनकी मदद करते हैं, और ये खुशी होगी उनके लिए कि उन्होंने ये काम कर लिया। आज के जो ब्लॉग था इसमें बताने का मकसद ये था कि जो चीज़ें आजकल के दौर में, खुसूसी तौर पर जिस फितरों के दौर में हम जिंदा, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं ना, वो हकीकत के 10% भी करीब नहीं होती। 90% हकीकत जो होती है ना वो हमसे छुपी होती है। वो चीज़ें हमें बताई नहीं जाती मीडिया, क्योंकि मीडिया ऐसा प्रोपोगंडा है जिसको टोटली 90% भी नहीं कह सकते, 99 में 100% कंट्रोल्ड है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो मीडिया हो। और लोगों को इन चीज़ों से दूर करने के लिए वो कोई ना कोई नया ऐसा प्लान करते हैं कि लोगों की तवज्जो उस चीज़ से हट जाए। खुसूसी तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो टीवी चैनल्स हैं, ये तो 100 से भी ऊपर % कर लें कंट्रोल है पूरी दुनिया में। वो जो चाहते हैं वो कहलवाते हैं, वो जो चाहते हैं वो करवाते हैं, वो अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ज़ाहिर बात है दुनिया का माल उनके पास है, दौलत उनके पास है, फाइनेंसिंग का सिस्टम, बैंकिंग का सिस्टम सारा उनके पास है, तो वो अपनी मर्जी करते हैं। और दूसरी तरफ हम दुनिया के माल को, जिसको अल्लाह ने हमें कहा कि दुनिया का माल जो है ना फितना है, हम उस फितने से मोहब्बत करते हैं मुसलमान। उस फितने से मोहब्बत की वजह से हम लोग गद्दारी करते हैं, हम अपनों को मरवाते हैं, हम अपने भाइयों के कत्लेआम पे खामोश रहते हैं। इतना बड़ा मसला, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में छोटे छोटे कह लें चूंटियों जैसे अपने जाती मसले हैं, वज़ीर आज़म ये कर रहा है, वो कल रऊफ़ हसन पे हमला हो गया। यार इंसानों वाली बात ही नहीं हम मुसलमानों में रही। इंतहाई दुख की बात है। इस तहकीकात में चाहिए था कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व होता, अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस को इस्तेमाल करता है, ईरान की मदद करता। अगर कोई इन्वॉल्व निकलता तो इस चीज़ के लिए वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो के मिल के मुसलमान कंट्री इस बात को अनाउंस करते कि इसके पीछे ये वजह थी। इससे एक तो मैसेज ये जाता है कि यूनिटी शो होती है कि मुस्लिम कंट्री यूनाइटेड है। अगर आज ईरानी सदर मरा है तो कल को क्या लगता है जो बंदा उनके खिलाफ बोलेगा किसी दूसरे मुल्क का, चाहे वो सऊदी किंग हो, तुर्की का हो सदर हो, चाहे पाकिस्तान का, वो उसको नहीं मारेंगे। जो बंदा उनके खिलाफ बोलेगा उसको मारेंगे। और ये इसी तरह करते हैं, क्योंकि ये सरेआम सामने आकर नहीं लड़ते, ये हमेशा बिहाइंड दी सीन रहते हैं। और तब तक ये कोई काम नहीं करते जब तक इनको इस बात का यकीन ना हो जाए कि ये इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए यहूदियों की साजिशों ने ही बेड़ा गर्क किया हुआ दुनिया का। इस मामले में मैं उनको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उनका मकसद ही ये है, उनका मिशन ही है, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। गलत मैं कहूँगा अपनी मुसलमान लीडरों को जो उनके मकसद में हाथ बटा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोई मदद का सबब पैदा करें, रास्ते पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें। ये
فتنوں کا دور تو ہے ہی، ساتھ میں مسلمانوں کی غداریوں میں عروج کا دور چل رہا ہے. جب آنے والے وقتوں میں تاریخ لکھی جائے گی ان چیزوں کو، مسلمانوں کی غداریوں کے دور میں، اس صدی کو مسلمانوں کی غداریوں کی صدی لکھا جائے گا، غلامی کی صدی لکھا جائے گا، مسلمانوں کی بے حسی کی صدی لکھا جائے گا، مسلمانوں کی جو ہے نا ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی صدی لکھا جائے گا، مسلمانوں کی بغیرتوں کی صدی لکھا جائے گا. جہاد کے جس میں جہاد ہی نہیں کرتے تھے، اپنے بھائیوں کے قتل عام پہ بھی خاموش رہتے تھے. آج کے لیے بس اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اپنا اور اپنے اہل عیال کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.